In the previous class, we have studied about French society during the late 18th century, and we have also studied about that in the 18th century, the French society was divided into three states, and only the member of the third estate paid the taxes. And we have also studied that because of increase in population in France, the struggle of survival of people arose. How a subsistence crisis happens. Here you can see a flow chart which shows the course of subsistence crisis. In the first block it is written bad harvest. Because of that bad harvest which leads to scarcity of grain, and because of scarcity of grain what happens is the food prices increases. When the food prices increases, the poorest of them can no longer buy the bread, and when they do not when they can't buy the bread, what happens is the two situation arises. The first is food riots, and the second one is weaker bodies. The food riots leads to increase the number of death. The weak bodies leads to disease epidemics, which also increase the number of death. So by this way the subsistence crisis happens. अगर हम बात करें कि सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे हैपन होती है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉक में दिया बैड हार्वेस्ट, मतलब अगर मान लीजिए कि फसल किसी साल रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, या फिर क्या बोलते हैं बारिश नहीं हुई, तो उसकी वजह से जो है जो फसल होगी वो बुरी, वो अच्छे से नहीं उग पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अनाज की कमी होगी। अनाज की कमी की वजह से जो खाने पीने के सामान का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, जिससे जो गरीब हैं, जो सबसे गरीब है, वो ब्रेड खरीदने के भी उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो जब वो ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे तो फिर उनके पास दो सिचुएशन उसके बाद अराइज होती है। पहला होता है फूड रायट्स, मीन्स खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, और दूसरा होता है वीकर बॉडी। जब दंगे वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे भी जो है जो नंबर ऑफ डेथ है वो इंक्रीज़ होगी, और वीकर बॉडीज़ की वजह से क्या होता है कि रोग या फिर महामारी फैलने का खतरा हो जाता है, जिससे कि जो है नंबर ऑफ डेथ वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू हमें समझ में आ रहा है कि जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी वो किस तरह से जो है वो हैपन होती थी, किस तरह से अकर करती थी। A growing middle class envisages an end to privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the Third Estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the rich members of the society. In addition to merchants and manufacturers, the Third Estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. अगर आप बात करो पास्ट की, तो पहले भी जो वर्कर्स थे और जो किसान थे उन्हें जो है जब अकाल पड़ा था उसकी वजह से जो टैक्स खाने की कमी हो गई थी, और जो भी करों में वृद्धि की गई थी उसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया था। लेकिन उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम आई थी कि वो उनके पास जो है उतनी इकोनॉमिकली जो है वो उनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, और उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे जिससे कि वो एक बदलाव ला सकें। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थर्ड ई स्टेट के उन ग्रुप के लोगों ने ली जो कि मतलब ऑलरेडी प्रॉस्पेरस थे, पूरी तरह से समृद्ध थे, और जिनके पास इतना था कि वो जो है एजुकेशन ले सकें और उसके बाद जो है वो अपने आइडियाज़ को लोगों तक बता सकें। अगर आप 18th सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारे जो है सोशल ग्रुप्स का जो है इमर्जेंस हुआ था, मीन्स वो आए थे एग्जिस्टेंस में, जिससे जो कि क्या बोलते हैं, अगर आप बात करो जिसे हमने क्या बोला मिडिल क्लास बोला, इन्होंने क्या किया कि कुछ जो है पैसे कमाए, और उसके बाद से जो है जो भी जो समुद्री व्यापार थे, ठीक है, उसमें ऊनी और रेशमी जो कपड़े थे उसके बेसिस पे उन्होंने जो है वो पैसे कमाए थे, और ऊनी और रेशमी जो कपड़े थे उनका या तो वो जो ख़रीद लेते थे, या फिर जो जो सोसाइटी के जो रिच मेंबर्स थे वो उनको ख़रीदते थे। और अगर आप बात करो तो जो तीसरे स्टेट पे जो मर्चेंट्स थे और जो इतने भी क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरर थे, उसमें ने जो है क्या बोलते हैं
ऐसे भी लोग थे बहुत से जो कि लॉयर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स, ठीक है, जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं, उससे जुड़े हुए थे। ये सारे लोग जो है पढ़े लिखे थे और इनका ये मानना था कि कोई भी जो सोसाइटी का ग्रुप है उनको जस्ट बिकॉज उनके बर्थ की वजह से कोई भी प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, ठीक है। Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas, envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. उनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन की जो पोजीशन होगी सोसाइटी में, वो उसकी मेरिट पर डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं, इन जो आज़ादी है और सभी को जो है इक्वल लॉस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है ये जो एक सोसाइटी को बनाने की एक थॉट प्रोसेस था, ये दिया था जो फिलोसोफर्स थे जॉन और जीन, इन्होंने दिया था, ठीक है। अपनी टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में जो जॉन थे, उन्होंने बोला था कि राजा जो था, जो किंग है, उसके जो भी जो एब्सोल्यूट राइट हैं और जो डिवाइन राइट्स हैं, उनको जो है मतलब उसको तोड़ा जाना चाहिए। रूसो जो थे, वो जो दूसरे फिलोसोफर थे, उन्होंने इसी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मतलब उन्होंने बोला था कि जो भी जनता और जो उसके प्रतिनिधित्व है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सोसाइटी के, उनके बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक उनकी एक जो है बुक थी, जिसमें सरकार के अंदर जो भी जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव है, इनके जो भी पावर थे, इसके बारे में बताया था, ठीक है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज़ थी, ठीक है, जब यूएसए की 13 कॉलोनीज़ ने जब ब्रिटेन से ख़ुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, तो वह इसी तरह की जो है सरकार बनी थी। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, और उसमें जो दी गई, जो लोगों को जो पर्टिकुलर राइट्स दिए गए थे और जो गारंटी दी गई थी, ये जो फ्रांस के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल था, ठीक है। ये जितने भी जो फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ थे, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली जो है वो कॉफ़ीज़ हो गए, कॉफ़ी हाउस हो गए, सैलून हो गए, और लोगों के बीच में बुक्स और न्यूज़पेपर्स की हेल्प से जो है वो स्प्रेड हो गया था। ये बेसिकली जो है बहुत तेज़ी से, मतलब लोग उनको बहुत तेज़ी से मतलब चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, जिससे कि वो जो पढ़ नहीं पाते या लिख नहीं पाते, जो तो वो भी सुन सकें। और जो ये वाली जो न्यूज़ थी कि लुई 16 ने जो है अपने किंग के जो किंगडम की जो है जो भी उसकी एक्सपेंसेस हैं, उसको नहीं पूरा कर पा रहा, तो इसलिए उसने जो है वो जो कर है उसको बढ़ा दिया है। इससे क्या हुआ था कि लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा था, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। That's it for today's class. Thank you.